نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے انوڑ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص طور پر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی پچھلی جو قرآن کی مجلس تھی اس میں ہم نے آیت نمبر 6 کو سمجھنے کی کوشش کی، جس میں وضو کا طریقہ اور اس کی اہمیت اور اس کے بہت سارے جو مسائل ہیں، کچھ چیزہ مختصر سے مسائل جو ہیں ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 6: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک دھو لو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ میسر ہو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یہ خلاصہ ہے جو ہم نے اپنے پچھلی مجلس میں دیکھا۔ وضو اور تیمم اور طہارت، ان کی اہمیت، ان کی افادیت ہماری ظاہری اعتبار سے اور خاص کر ہماری روحانی اعتبار سے، اور پھر یہ سارا کچھ، اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بھرپور نعمت جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل کرے، یا ہم کم از کم، اللہ تعالیٰ نے تو ہر طرح کی نعمت ہمیں دے رکھی، اس نے تو پوری سیل جو ہے، پوری آفر جو ہے وہ کھول رکھی۔ اب یہ ہماری ہمت یا ہماری نیت یا ہمارا ارادہ یا ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میں سے کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، کتنی نعمتوں کو فائدہ مند بناتے ہیں، اور کس طرح سے ان کا بھرپور فائدہ دنیا اور آخرت میں بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھرپور نعمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے وضو اور اس سے متعلقہ جتنے معاملات ہیں ان کا خیال رکھنا، اور ہمیشہ اس چیز کی طرف مائل رہنا، یہ ایک انداز ہے یا ایک طریقہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر تذکرہ کیا، اور اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ بہت ساری روایات میں ہم نے دیکھی، اس کو سمجھنے کی بھی ہم نے کوشش کی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سارے معاملات میں اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے معاملات کو درست کر سکیں،
वुदू का अहतमाम जो है, तहारत का अहतमाम जो है वो ज़रूर हमें रखना चाहिए। अपने कपड़ों को, अपने बदन को पाक रखना जहाँ तक मुमकिन हो। अल्लाह ताला ने अगर सेहत दी है तो ये तो बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है कि कोई अल्लाह ताला के इस हुक्म को सामने रखते हुए अपना मामलात जो है उनको संवारने की कोशिश रखता है। और फिर हर वक्त बावजू रहने के अपने बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिनका हमें भरपूर कोशिश करनी है कि चाहिए कि हम एहतमाम रखें कि जब भी हम रफ़ा हाजत से हो या कोई भी इस तरह का मामला हो तो हम दोबारा से गुस्ल या वज़ू करके अपने आप को जिस्मानी और रूहानी तौर पर पाक रखें हर वक्त। और ये इस तरह से कोई जिस्मानी और रूहानी तौर पर अपने आप को पाक रखता है तो उससे गुनाहों से पीछे हटने में बहुत मदद मिलती है, और फिर नेक काम करने की तबीयत जो है वो भी उसकी तरफ माइल रहती है। लिहाजा ये एक टोटके के तौर पर भी हम अगर कहें तो हमारे लिए बहुत ही मुफीद है कि हम अपने आप को हालत पाकीज़गी में रखें, जिस्मानी तहारत के एतबार से भी, पाकीज़गी के एतबार से भी, और रूहानी एतबार से भी, ताकि हम भरपूर नेमतों का फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकें। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा अगला सबक जो है आयत नंबर 7 से शुरू होता है। और इससे पहले जैसा कि हमने तज़किरा किया, शुरू की आयत अब तक जो 5-6 आयत पढ़ी हैं उसमें अल्लाह ताला ने पहले ही पहली आयत के पहले ही हिस्से में वादों को पूरा करने का हुक्म दिया मोमिनीन को। और फिर बहुत सारे वादे जो हैं वो मोमिनीन के हैं अल्लाह के साथ। और फिर अल्लाह ने भी अपने लोगों के साथ वादे कर रखे हैं कि अगर तुम जो जो एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट या एक पक्का वादा जो अल्लाह ताला के साथ किया हुआ है, अगर तुम उसकी शिकों को पूरी करोगे तो फिर भरपूर नेमतें अल्लाह ताला जो है वो दुनिया में और आखिरत में बतौर ख़ास जन्नत की शक्ल में मिलेंगी। लेकिन अगर तुम उस वादे की टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करोगे, गो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पूरा इख्तियार दे रखा है, तो ऐसी सूरत में तुम्हें अल्लाह का ये भी वादा है कि वो इंसाफ करता है, और इंसाफ का तकादा ये है कि वो जो नाफरमानी करे, जो नाशुक्री करे, उसको सजा दे। तो फिर अल्लाह ताला सजा देने पर भी भरपूर कादिर है। तो उसी एतबार से हमारा अगला जो सबक है वो भी इन्हीं जो बेसिक जो अ, वादा है उसकी तरफ हमें तवज्जो दिलाता है कि मोमिनों से भी अल्लाह ताला ने वादा किया, या मोमिनों का और अल्लाह ताला के दरमियान एक मिसाक है। इसी तरह का मुआहिदा या इसी तरह का वादा जो है वो बनी इसराइल में यानी यहूदियों ने भी अल्लाह ताला से किया, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर नाफरमानियाँ की। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत फरमाई। और इसी तरह से ईसाई जो है, नसारा, उन्होंने भी अल्लाह ताला के साथ वादा किया लेकिन उन्होंने भी उसको पशेपुश डाल दिया। अब मुसलमान जो हैं उनके पास ये वादा जो है पक्का मौजूद है। अब अगर मुसलमान अपने इस वादे के मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त रखेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की मदद दुनिया में भी और आखिरत में तो होगी। लेकिन अगर कोई उस वादे को तोड़ेगा, उस वादे को पशेपुश डालेगा, तो यकीनन अल्लाह ताला जो है वो सजा भी देगा, नाराजगी का इजहार भी करेगा, गजब भी, गजबनाक भी होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये सारे मामलात जो हैं ये साथ साथ चलते हैं। और बिल्कुल एक बॉटम पॉइंट जो है, बिल्कुल एक शॉर्टकट समरी जो है कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो अल्लाह के साथ किसी न किसी, अल्लाह के साथ किए गए वादों में से किसी न किसी वादे को, किसी न किसी वादे की शिक को पूरा करने के लिए है। हमारा हर हर लम्हा जो है वो किसी न किसी वादे के अंदर चल रहा है। तो लिहाजा हमें हर लम्हा अल्लाह के साथ वादे किए गए जो हैं उनका ख्याल रखना जो है, उनकी तरफ ध्यान तवज्जो देना जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अहम है कि हम इन आयात से ये सबक हासिल करें। अल्लाह ताला से तौफीक की दुआ के साथ हम शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़कुरुल्लाह, वज़कुरु नेमतल्लाहि, और तुम याद करो अल्लाह के एहसान को। अब ये मोमिनीन के साथ मुखातब हैं अल्लाह ताला। मोमिनीन को यहाँ पर कहा गया, जैसा कि पिछली आयत के शुरू में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनों के साथ खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने बात शुरू की कि तुम नमाज में जब रेडी हो तो वज़ू का अहतमाम करो। इसी तरह से आगे
वज़ू वगैरह करो, अपने आप को रूहानी और जिस्मानी एतबार से पाकीज़गी का अहतमाम करो। वज़्कुरू नेमतल्लाहि, और तुम अल्लाह के एहसान को, अल्लाह की नेमतों को याद करते रहो, उसका जिक्र करते रहो, अलैकुम, जो उसने तुम पर की। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर बेशुमार नेमतें जो हैं वो कर रखी हैं। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो किसी ना किसी नेमत का मजहर है। हर लम्हा जो है, हर लम्हे को अगर हम कंपेयर करें, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जिनके पास उस तरह की लम्हाती नेमत जो है वो मौजूद नहीं होगी। सबसे बड़ी नेमत की दौलत दौलत जो है वो अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत जो है वो हमें अता फरमाई। फिर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना और उनका उम्मती बनाने की हमारे अल्लाह ताला ने नेमत दी। अल्लाह ताला की मदद और कामयाबियां जो हमें मिली, काफिरों पर गलबा। जब ये आयात नाज़िल हो रही हैं, उस वक़्त के एतबार से भी अगर देखें तो मुसलमान जो अब सुलह हुदैबिया के बाद की ये आयात हैं, या मतलब छठ छठ सातवीं आठवीं हिजरी जो है, उस वक़्त तक मुसलमान जो है वो एक ताकत के तौर पर उभर चुके थे। जबकि एक वक्त ऐसा था जब मुसलमान इस कदर कमज़ोर थे कि वो अपने घरों से निकलना उनके लिए मुश्किल हो चुका था मदीना मक्का में। और चलते 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 चले अल्लाह ताला ने उनको इस कदर ताकत अता फरमाई कि अब वो मतलब भरपूर अंदाज से अपने दीन जो है उसके ऊपर अमल भी कर सकते हैं और दूसरों को तो पैगाम भी पहुंचा सकते हैं। उस वक़्त के एतबार से भी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें। और एक आम आयत के तौर पर हम अगर देखें तो हर इंसान पर अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें की हैं, और मुसलमानों पर तो बतौर ख़ास अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना और इस तरह की रूहानी जो नेमतें हैं वो तो मतलब उनकी तो इंतहा यानी कि हो गई। तो फिर जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने तुम्हें दी रखी हैं, चाहे दुनियावी एतबार से हो, चाहे तुम्हारी रूहानी एतबार से हो, तो चाहे तुम्हारी मुआशरती, तुम्हारे अपने ख़ानदान के, तुम्हारे अपनी फैमिली के, उन सब को तुम याद करो, अल्लाह ताला का एहसान मानते रहो। वह मीसा कहू, वो और उस वह अहद को भी याद रखो तुम, अल्लाजी वासाकुम बिही, जो कि तुमसे पुख्तगी से लिया गया था। और अपने उस वादे को भी तुम याद रखो जो तुमसे पुख्तगी से लिया गया था, यानी वो पक्का वादा जो तुमने अल्लाह के साथ कर रखा है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। जो ईमान के सारे तकाजे हैं कि हम अल्लाह को ही सिर्फ एक मानेंगे और उसके अलावा किसी की नहीं मानेंगे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब ईमान लाते हुए उन पर उनके अहकामात के मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त रखेंगे। और बेशुमार वादे जो हमने कर रखे हैं अल्लाह के साथ, वो सारे के सारे वादे भी आ सकते हैं। इस कुल तुम समय ना आताना, जब तुमने कहा कि हमने सुन लिया और हमने मान लिया, यानी जब वो तुम्हारे वादे जो तुमने अपने रब से का रब के साथ कर रखे हैं, जिनके जरिए से तुम इस बात का पर मुत्तफिक हो गए, इस टर्म एंड कंडीशन, इस कंडीशन पर मुत्तफिक हो गए थे कि ए अल्लाह, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू एक वादा जो है वो किया गया। बहुत सारे वादे, इसमें बहुत सारी मिसालें, बेशुमार मिसालें पेश की जा सकती हैं। लेकिन किसी भी तरह की मिसाल को पेश करना गोया के उस इस आयत की वसअत को महदूद करने के मुतरादिफ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर जब बैत करते थे नौ मुसलमान, या मुसलमान जब सहाबा कराम किसी भी मामले में, तो वो भी एक इताअत की बैत थी कि हम अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। एक मोमिन जो है जब वो कलमा शहादत कहता है तो वो एक वादा करता है कि हम मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा और उसी की इताअत करूंगा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए गए या बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त करूंगा। बेशुमार इस तरह के वादे जो हैं वो हमें मिलते हैं। और इन वादों की एक भरपूर शक्ल जो है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 285 में हमें उसकी झलक जो है वो नज़र आती है। बहुत ही मशहूर आयत है ये। आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिह वल मुमिनून कुल्लु कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ए रसूलुल्लाह पर रसूल ईमान, रसूल उस पर ईमान लाया जो उसके रब की जानब से उसकी तरफ नाजल किया गया, और सब मोमिन भी उसी पर ईमान लाए। हर एक अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाया। हम उसके रसूलों में से किसी एक में भी तफरीक नहीं करते। और उन्होंने कहा, यानी सब ने कहा, फरिश्तों ने, रसूलों ने, नबियों ने,
और उन सब ने कहा कि हमने सुना। और मुसलमानों में भी, मोमिनों में भी, जो जो उनके ऊपर ईमान लाया, उन्होंने कहा कि हमने सुना और हमने इताअत की, समेअना व अताअना। तेरी बख्श, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं, ऐ हमारे रब, तेरी ही तरफ हमें लौट कर जाना है। तो इन वादों की एक समरी जो है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 285 में हमें मिलती है, कि किस तरह से ना सिर्फ रसूलों ने बल्कि फरिश्तों ने और बहुत सारे जो 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 जितने मोमिनीन हैं उन सब ने अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी किताबों पर ईमान लाने का वादा किया, और उसके मुताबिक हम वादा किया कि समय ना वाता आना, कि हमने सुना और हम इसके ऊपर एग्री हैं, और हम इस एग्रीमेंट के मुताबिक अपना वादा जो है वो पूरा करते रहेंगे। तो बेशुमार वादे जो है वो हमें मिलते हैं। तो उस वादे की तरफ याद दहानी है, और ये हमारा हर वक्त किसी ना किसी की तरह का वादा जो है वो हमारे सामने रहता है। तो उस वादे को भी जो तुमने पुख्तगी के साथ अल्लाह के साथ किया है, कि हमने सुना और हमने मान लिया, उसको भी याद रखो। वत्तकुल्लाह, और तुम डरते रहो, अल्लाह ताला से तुम डरते रहो। अब अल्लाह ताला से डरते रहो, बहुत सारे मुख्तलिफ एंगल में इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एंगल जो है उसको अगर हम लें, कि कोई भी वादा अल्लाह ताला के साथ है तो उसमें बहुत सारे वादे तो ऐसे हैं जो कि ज़ाहरी एतबार से पूरे करने वाले हैं। अपने दूसरों के साथ हुस्न सलूक करना है, या किस तरह से मुआशरती मामलात में लेकर चलना है। लेकिन बहुत सारे वादे ऐसे भी हैं जो सिर्फ इंसान के और अल्लाह के दरमियान मतलब एक खुफिया कहने के होते हैं, या तखलिया या तन्हाई में वादे किए होते हैं, जो सिर्फ बंदे के और सिर्फ अल्लाह के दरमियान एक बराह रास्त ताल्लुक है। उसमें बंदा जो है वो भी डंडी अगर मारे तो किसी को पता भी नहीं चलता। तो देखो, तुम्हारे चुप चाहे ज़ाहरी तौर पर सारे मामलात या वादे हों, चाहे तुम्हारे छुपे हुए हों, सब में तुमने उसका ख्याल रखना है, और अल्लाह ताला से डरते रहो, कि अल्लाह ताला तुम्हारे हर तरह के मामले से बखूबी वाकिफ है। वो इन्ना अल्लाह अलीम बिज़ात सुदूर, के बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है तुम्हारे सीनों की बातों में। अगर तुम ये समझो कि किसी ऐसे छुपे हुए वादे को, ज़ाहरी तौर पर वादे जो हैं, जो किसी दूसरे लोगों के साथ मतलब कोलो करार या इस तरह के मामलात में तुम दिखावे के तौर पर अगर तुम करते रहो, अगर तुम छुपा कर भी कोई ऐसे वादे जो है उनकी नाफरमानी करोगे, तो अल्लाह ताला उससे भी बखूबी वाकिफ है। तो अल्लाह ताला ने जो वादे कर रखे हैं, अल्लाह ताला के साथ जो तुमने वादे कर रखे हैं, उनको पूरी तरह से जहनों में रखो और अल्लाह से डरते रहो, ये जानते हुए या ये समझते हुए, इस चीज़ को जहन नशीन रखते हुए, कि अल्लाह ताला तुम्हारी सीनों में छुपी हुई बातें, इरादे, तुम्हारे ख्यालात, नज़रियात, सबको खूब अच्छी तरह से जानता है, और उनके मुताबिक तुम्हारा नामा अमाल जो है वो खुलने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कूनु कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, तुम सब कायम रहने वाले हो जाओ अल्लाह के लिए गवाही देने वाले, इंसाफ की। तुम हमेशा इंसाफ के साथ अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बन जाओ, या खड़े हो जाओ, या मजबूत कर लो अपने आप को। है ईमान वालो, तुम अल्लाह के लिए इंसाफ पर मबनी गवाही देने वाले बन जाओ, या गवाही पर कायम रहने वाले, खड़े हो जाने वाले, डट जाने वाले बन जाओ। ये बहुत ही अहम आयत है। इसकी तफसीर जो है हमने काफ़ी डिटेल में सूरह निसा की आयत नंबर 135 में भी गुजरी थी। वहाँ से हम उसकी थोड़ी सी दोबारा से तमहीद या दोबारा से उसको याद दहानी कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से यहाँ पर मुख्तसर अंदाज में अगर कहें, कि हक के साथ खड़ा रहना जो है, और हक के साथ गवाही देना और हक की गवाही देना, ये बहुत नेकी के और तकवा के अफजल तरीन कामों में, या बड़े कामों में से एक काम है, और बड़े ही सब्र आजमा काम है। बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर मतलब कुछ फ़ायदे जो हैं उनको भी पसे पुश डालना पड़ता है, किसी के साथ हक के साथ खड़े होने में बहुत सारे थ्रेट्स भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जिनसे इंसान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, नुकसानात का अंदेशा भी होता है। लेकिन हक को छोड़कर बातिल के साथ खड़ा हो जाना, आसानी हासिल करने के लिए, अपने आप को किसी मुसीबत से बचाने के लिए, तो ये एक बहुत ही गुमराह कुन बात है, और बहुत ही नापसंदीदा बात है। अल्लाह ताला की तरफ से गज़ब को दावत करने देने की बात है। अगर वक्ती तौर पर कुछ मुश्किल लम्हात जो है उसको सामना करना भी पड़े, फिर भी हक के साथ खड़ा रहना और हक के साथ डट जाना जो है, यही दर हकीकत इस आयत का कहने के एक मफहूम है, या एक मकसद है, कि अल्लाह ताला ने याद कराया कि तुमने ये भी वादा किया है कि हम हक के साथ डट जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो लिहाजा तुम उस वादे के मुताबिक
हक के साथ अल्लाह ताला के लिए गवाही देने पर डट जाओ, और हर तरह की सिचुएशन का मुकाबला करते रहो, लेकिन हक को रास्ता जो है वो नहीं छोड़ना। और हक के रास्ते में फिर बहुत सारे मामलात जो है उनमें कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे कबीरा गुनाहों में से बड़े गुनाह का नाम बताऊं? हमने अर्ज की कि जी हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना और वालिदैन की नाफरमानी करना, ये कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। वालदे अल्लाह के साथ शिरक करना और वालदैन की नाफरमानी के ऊपर हमने पहले तज़किरा किया कि ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। कोई ये हल्का मत जाने कि अगर उसके वालदैन के साथ उसने कोई नाचाकी कर दी है तो उसकी छूट हो जाएगी, उसका बहुत बड़ा भयानक अंजाम होगा। बहरहाल वापस आते हैं हदीस की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना और वालदैन की नाफरमानी करना, और ये फरमाकर आप सीधे बैठ गए, हालांकि इससे पहले आप टेक लगाए हुए थे। फिर आपने फरमाया, खबरदार झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, खबरदार झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, खबरदार झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। फिर आप बराबर इन अल्फाज को दोहराते रहे, यहाँ तक कि मैंने अपने दिल में ये कहा कि शायद आप खामोश ही ना हो। इतनी दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिपीट किया कि झूठ बोलना और झूठी गवाही देना ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। लिहाजा झूठ से अपने आप को बचा कर रखना, और गवाही के मैटर में, गवाही जो है ज़रूरी नहीं कि अदालतों में जाकर या कोर्ट कचहरियों में जो गवाहियाँ दी जाती हैं वो ही है। गवाही जो है वो हर लम्हे हमारी कोई ना कोई गवाही हम एक दूसरे के लिए देते रहते हैं। हम एक दूसरे के साथ किए हुए वादे हैं, एक दूसरे के साथ हमारे जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, हमारी जिम्मेदारियां जो हैं, वो भी हमारे वादे हैं। तो अगर हम अपने जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, गोया कि हम अपने वादों को पूरा नहीं करते। और फिर आपस में बातचीत के दीगर मामलात में हर तरह के वादे जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और फिर इंसाफ के साथ वादे करना जो है, या इंसाफ के साथ वादे के ऊपर डट जाना, खड़े हो जाना, ये तो उससे भी बढ़कर है। जैसा कि एक एक रिवायत से हमें अंदाजा होता है इसका, बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है। ये हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मेरे वालिद ने मुझे कुछ माल अतिया दिया। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे कुछ माल सदका किया या अतिया किया, और मेरी वालिदा उमरा बिनते रवाहा ने कहा कि मैं तो उस वक्त तक खुश ना होंगी जब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह ना बना ले, यानी जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप बताकर उनकी शहादत इसमें ना ले लें कि मैंने अपने इस बेटे को, एक बेटे को ये कुछ माल अतिया दिया है, मैं इस पर खुश नहीं होंगी। चनांचे मेरे वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस मकसद के लिए हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने अपनी तमाम औलाद को इस तरह का अतिया दिया है? उन्होंने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद में अदल करो। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद ने वापस आकर मुझसे अपना सदका वापस ले लिया। तो यानी इस हदीस से एक तो हक के साथ इस तरह से डट कर खड़े रहना है कि हम रोजमर्रा के मामलात में जो माम करते हैं, जो बराबर का हक जो है वो किसी को देना, किसी की ना हक की हक तलफी ना हो। इस हदीस से हमें पता चलता है कि अपनी औलाद में अपना कोई मेजर कोई गिफ्ट, मतलब आजकल ये बड़ी आम सी एक बात है जिसको हमें हल्का नहीं लेना चाहिए, कि ज़िंदगी में जब दो तीन चार जितने भी बच्चे हैं उनके दरमियान इंसाफ कायम रखना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। और उनकी तरबियत में, उनके खाने पीने में, उनकी उनके जितने अखराजात हैं, उनकी स्कूलिंग में बराबरी होनी चाहिए। अपने हालात के मुताबिक सबके साथ बराबर ट्रीट करना चाहिए। और कुछ बड़े तहायफ जो हैं वो कुछ बाज़ दफ़ा हो जाते हैं, जैसा कि किसी को बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी किसी एक बेटे को और दूसरे बेटों को छोड़ दिया, या किसी को इस तरह से कोई बड़ा तोहफा दे दिया छुप छुपा कर, या मतलब किसी के साथ ज़्यादा, औलाद में भी किसी के साथ ज़्यादा लगाव, किसी के साथ कम लगाव रहता है। लेकिन उसमें भी ये इंसाफ का ये तकाजा है कि इंसाफ के साथ रखें। कंप्रोमाइज़ करना है अगर, तो पूरा जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसको एक साथ लेकर चलना है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके पहलू नज़र आते हैं। बाहर इसकी अपनी एक अहमियत और इफादी थी कि जब भी तुम बात करो, हक बात करो और हक की गवाही दो और हक के साथ खड़े होने वाले बन जाओ। वला यजरमन्नकुम, और देखो तुम्हारा हरगिज ना आमादा करें तुम्हें शनाआन दुश्मनी, बदला लेने की जिद जो है, कौम इन किसी कौम के अला
अला अल्लाह तादिलू, कि तुम इस बात पर आमादा ना करे कि तुम अदल ना कर सको। और देखो तुम्हारा बदला लेने की जो जिद है, तुम्हारी दुश्मनी जो है, वो तुम्हें इस कदर तुम्हारे जज्बात को ना बढ़ा दे कि तुम अदल ना कर सको। अब ये भी दूसरी तरफ, पहला तो है कि इंसाफ के साथ, और इंसाफ का तकाजा ये है कि तुम गुलू से बचो। जैसा कि इससे पहले तذکرہ हुआ कि यहूदियों ने गुलू किया रसूलों के मुखालफ होकर, और ईसाइयों ने गुलू किया रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जाकर। तो मोहब्बत में भी गुलू जो है वो मना है, और किसी की दुश्मनी और नफरत में भी। और इस वक्त जब ये आयत नाज़िल हो रही हैं, उस वक्त तो मुसलमान जो हैं वो एक ताकत बन चुके हैं, वो एक एक ताकत के तौर पर उनको माना जा चुका है। तो अब ऐसी हालत में, अब तुम्हारे पास जबकि ताकत आ जाती, ताकत का नशा एक ऐसा नशा होता है जो कि कमजोर के ऊपर बड़ी आसानी से अपनी अपने वार जो है वो करता है, और कमजोर को मसल देने में जब कुदरत होती है तो इंसान जो है वो भूल जाता है कि वो, उसको जिसने ताकत दी है वो उसका इख्तियार रखता है कि तुम्हें तुमसे या ताकत छीन ले, या तुमसे वो हिसाब किताब लेगा। तो ये बात जो है ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपने कैसे कमतर, वो गरीब और मजदूर लोअर तबका जो तुम्हारे अंडर है, उसके साथ भी तुमने अदल व इंसाफ का दामन जो है वो कायम रखना है। और तुम्हारे दुश्मन जो है, जब तुम उनके साथ तुम्हारी मुठभेड़ हो तो वहां पर भी तुम्हें अदल व इंसाफ से कायम लेना है, कि तुम्हारी दुश्मनी जो है, तुम्हारे पास जो ताकत आ चुकी कि तुम अब बदला लेने की पूरी कुव्वत रखते हो, ये भी बात तुम्हें इस बात पर कहीं आमादा ना कर दे कि तुम अदल ना कर सको। अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्म के मुताबिक, या अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे के मुताबिक, ए दिलो, तुम सब अदल करो। लिहाजा तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम सब हर मामले में अदल करो, चाहे मोहब्बत हो चाहे दुश्मनी हो, तुम अदल से काम लो, इंसाफ से काम लो। हुआ अक़रबु तकवा, और ये तकवा से ज़्यादा करीब है। वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह से डर जाओ, या अल्लाह ताला से डरते रहो, ये ज़्यादा करीब है तकवा के। यानी अदल कायम करना, या अदल के साथ बात करना, और अदल के साथ इंसाफ के साथ खड़े हो जाना, यही दर हकीकत तकवा के ज़्यादा करीब है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला खूब खबर है, बाखबर है तुम्हारे हर अमल से। ये वापस वही आ गई कि अगर तुम्हारे पास कोई ताकत बस है ऐसी कि तुम जिस तरह से मर्जी करते रहो, तुम्हारे चाहे ज़ाहरी तौर पर चाहे छुपे अंदाज में, अल्लाह ताला तुम्हारे हर तरह से मामले से बखूबी बाखबर है। लिहाजा तुम इस बात को जहन नशीन रखो, और हमारे खलवत में और ज़ाहिर में और इरादों में और अमल में हमेशा अच्छे काम करते रहो, ताकि तुम बेहतरीन अंदाज से तकवा भी हासिल कर सको, और अल्लाह ताला के जो इंसाफ है उसमें तुम गजब से भी बच सको। वादल्लाहु, वादा फरमाया है अल्लाह ताला ने, अल्लाज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, उन लोगों के साथ जिन जो सब ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, लहुम मगफिरतुम व अजरुन अजीम, कि बेशक उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। अल्लाह ताला के ये वादा है, वो जो वादा अल्लाह ताला ने किया है, टर्म्स एंड कंडीशन, उस टर्म्स एंड कंडीशन पर जब तुम पूरा उतरोगे, 8 नंबर आयत तक हमने देखा कि वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उनमें से कुछ शिकों का या कुछ वो टर्म्स का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, और फिर अल्लाह ताला याद करा रहा है कि तुम अगर इन टर्म्स के ऊपर पूरा उतरोगे तो फिर अल्लाह ताला जो है उसकी टर्म क्या है या उसका वादा क्या है, कि वो ऐसे सारे लोगों को जो ईमान के साथ साथ नेक अमल भी करेंगे, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम का वादा है अल्लाह ताला का। और यकीनन अल्लाह ताला अपने वादे से हटता नहीं है। इंसान जो है वो अपने वादे में कमज़ोर हो जाए तो और हो जाए, अल्लाह ताला अपने वादे से नहीं हटता। और उस कंडीशन को जो पूरा करेगा, वादा कर जो अल्लाह ताला से साथ किया उसके पूरा जिसने किया, उसको तो अल्लाह ताला बख्श देगा। लेकिन उसी टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी तयशुदा है कि वल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन सब ने कुफर किया, वकज़्ज़बू, उन सब ने झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुल जहीम, वही लोग जहन्नम वाले हैं। यानी जिसने तो उन वादों को जुटला दिया और उनको बिल्कुल उनको पसे पुश डाल दिया, वादा करके अपने आप को उसके बाद उसकी वादा खिलाफी शुरू कर दी और अपनी मनमानियां शुरू कर दी, और बिल्कुल ही भुला दिया, जुटला दिया, ऐसे लोगों को तो फिर जहन्नम में डालने की भी कंडीशन है कि अल्लाह ताला ने रखी है टर्म्स एंड कंडीशन में। तो लिहाजा तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा अब मतलब जो इख्तियार है कि तुम किस टर्म को अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की किस टर्म को तुम अपने लिए पसंद करते हो। क्या तुम जन्नत में जाने के लिए और बख्शिश और अजर अजीम जो है उसको हासिल करने की टर्म पर मतलब की तरफ भागते हो,
یا تم جہنم والی ٹرم کی طرف بھاگتے ہو، یہ اب تمہارا اختیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تذکرہ کرتے رہو، یاد کرتے رہو نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ ہم قوم، جب جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ سب بڑھائیں تمہاری طرف اپنا ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، تو روک دیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے۔ اے ایمان والو، ذرا اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کو بھی، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو بھی یاد کر لو کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، یعنی تمہارے اوپر حملہ کرنے کا، تمہیں نقصان پہنچانے کا، تمہیں نیست و نابود کر دینے کا، تمہارے خلاف اس طرح کے اقدامات کیے کسی ایک قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اب یہ آیت جو ہے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس قدر وسیع ہے کہ مختلف جو تفسیریں ہمیں ملتی ہیں ان میں مختلف طرح کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت کی جو وضاحت ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ساری تفاسیر جو ہے مختلف مفسرین کی اگر ہم پڑھیں تو گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ پوری ہسٹری ہی در حقیقت اس آیت کی تشریح ہے، یا اس آیت کی تشریح کرنے کے لیے پوری مسلمانوں کی ہسٹری جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کہ ایک وقت کا کہ مسلمان جو ہے وہ جب ایمان لاتے تو اپنے گھروں سے نکلنا ان کے لیے مشکل تھا، اور چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی ایک ٹولی بنی، جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے بتدریج ایسی قدرت ان کو عطا کرتا رہا، ایسے وعدے، سوری ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کیے کہ بہت سارے مختلف مواقع کے اوپر ان کے اوپر کس کس طرح سے مشرکوں نے، کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے کبھی مل کر، کبھی الگ الگ ہو کر، کبھی جتھے بنا کر، کبھی پلاننگ کر کے، کبھی اچانک سے حملے کیے، کس کس طرح سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے راستے کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ذاتی طور پر یا انفرادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں سے ہٹانے کے لیے بھی کس کس طرح سے انہوں نے اقدامات نہیں کیے، تدبیریں نہیں کیے، ان کی ساری تدبیروں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ان کی ساری تدبیروں کو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشیں جو ہے وہ بھی اس میں تھیں، کچھ مشکلات بھی تھیں، جن کا مقصد جو ہے وہ اس قوم کو زیادہ مضبوط کرنا، اس قوم کو سبق سکھانا، یا اس قوم کو آئندہ کے لیے اپنے ایمان کو اور اپنے جو دوسری وسائل ہیں ان کو اور زیادہ مضبوط کرنا، اپنی جنگی حکمت عملی کو زیادہ نکھارنا اور زیادہ لائن اپ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل تھی ان سارے معاملات میں۔ تو یہ سارا کچھ ساتھ چلتا رہا، لیکن اوور آل سنیریو یہ ہے کہ ایک ایسی قوم یا بہت ساری قومیں جو ہیں جنہوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف اس قدر بڑے بڑے اقدامات کیے، لیکن ان سارے اقدامات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، اور بالآخر مسلمانوں کو ایک فتح یا ایک کامیابی یا ایک طاقت بنا کر ابھارا۔ یا انفرادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر بے شمار انہوں نے اس طرح کے حملے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے بڑھتے ہاتھوں کو بھی روکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی۔ گویا کہ اس طرح سے پورے یہ دین کی، پورے مسلمانوں کی قیامت تک آنے کے لیے آنے والا یہ جو دین ہے، رہنے والا یہ جو دین ہے، اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ ایک بہت بڑی آیت ہے اس اعتبار سے۔ بہت سارے جو روایات جو ہیں وہ ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے پڑاؤ کیا، اور صحابہ کرام بھی درختوں کے سائے میں پوری وادی میں پھیل گئے، ادھر ادھر پھیل گئے سارے آرام فرمانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے قیام فرما رہے تھے، اور اپنی تلوار جو ہے اس درخت پر لٹکا دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میری تلوار مجھ پر سونت لی۔ میں اس وقت سویا ہوا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ اب یہ دیکھو کہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔
तो यानी कि एक ऐसा भी वक्त आया कि एक तन्हाई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी तलवार जो है वो दरख्त पर लटका कर सोए हुए हैं, उनकी नींद की हालत में ही वो शख्स आया और उसने आकर तलवार जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तान ली और उनसे पूछा, जगा कर उनसे पूछा कि कौन कौन बचाएगा आपको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा कि मेरा रब मुझे बचाएगा। तो इसी बात पर उसके हवास बाख्ता हो गए और तलवार जो है उसके हाथ से गिर गई और वो वहां पर बैठ गया और सरेंडर कर दिया उसने, गोया के। तो इस किस किस तरह से नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अल्लाह ताला ने हिफाजत की। सही मुस्लिम की एक और रिवायत अगर हम देखें, हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अहले मक्का में से 80 आदमी मुसल्ला होकर तंजीम के तनाइम के पहाड़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ अमर हुए। और वो ये चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब गफलत में हो तो उन पर हमला करके कत्ल कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उन्हें कैद पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़कर कैद कर लिया और फिर छोड़ दिया। इस सिलसिला में वो सूरह फतह की आयत नंबर 24 जो है वो भी नाज़िल हुई, जिसका मफहूम यह है कि और वही है जिसने मक्का की वादी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, इसके बाद कि तुम्हें उन पर फतह दे, और अल्लाह ताला उसको जो तुम करते हो हमेशा खूब अच्छी तरह से देखने वाला है। जो ये भी खुदैबिया के मामले वाक़े को जब हम तफसील से देखें तो उस मौके पर भी किस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में मुसलमानों पर हमला होने करने के लिए बेताब थे। कुछ उनकी कंडीशन थी कि अब वो उम्रा के लिए आ रहे हैं और फिर उनकी रिवायात के मुताबिक उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने भरपूर अपनी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके हाथों को रोके रखा। गज़वा अहज़ाब का जब वाक़या देखें तो उसमें भी हम देखते हैं कि बाद में ग़ज़वा अहज़ाब जब ख़त्म हुआ और मुशरिकीन का लश्कर जो है वो निकल पड़ा, तो रास्ते में उन्होंने सोचा कि क्यों ना दोबारा जाकर इस पर हमला किया जाए मुसलमानों को के ऊपर मदीना में। लेकिन मुसलमानों का एक ग्रोह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया कि ताकि अगर उनका वापसी का इरादा हो तो रास्ते भी निमट लिया जाए। तो मुशरिकीन ने जब ये मामला देखा तो उन्होंने वापसी का इरादा यानी दोबारा हमले करने का इरादा तर्क किया और फिर वापस मक्का की तरफ रवाना हो गए। सुलह हुदैबिया के वक्त भी किस तरह से बेताब थे। बहुत सारे दीगर मौके के ऊपर हम देखें कि किस किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनको नौजुबिल्ला जहर से जहर आलूद गोश्त जो है वो भी खिलाकर मतलब रास्ते से हटाने की कोशिश की कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। इसी तरह से एक दावत में बुलाकर उनको उनके ऊपर चक्की का पाट जो है बड़ा पत्थर इस तरह के वो गिरा कर उनको रास्ते से हटाने की भी एक तदबीर की, वो भी अल्लाह ताला ने किस तरह से वही करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसके ऊपर आगाह कर दिया। गो के पूरी तारीख अगर देखें कि मुसलमानों की ये पूरी तहरीक में, तो वो उसमें बहुत सारे वाकयात ऐसे मिलते हैं जो कि इस आयत को कोट करने के या इस आयत की तशरीह के तौर पर देखे जा सकते हैं। और फिर एक बड़ा अहम वाकया जब सन 10 नबवी में जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू तालिब जो है उनकी वफ़ात के बाद मतलब ताइफ का सफ़र किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वहाँ पर किस तरह के हालात हुए, बहुत ही मतलब बुरा सलूक किया ताइफ वालों ने। तो फिर वो वापस जब पलटे तो हज के सीजन में फिर उन्होंने जब दावत दी ओस और खजरत को, किस तरह के हालात थे, उस कदर कठिन और इस कदर मुश्किल हालात थे। तो वहाँ पर ओस और खजरत के चंद लोगों ने वहाँ पर थोड़ा सा अपना अपनी पॉजिटिविटी दिखाई और उनके दिल में अल्लाह ताला ने डाला, और फिर ओस और खजरत जो आपस में खून के प्यासे थे उनके दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक हुआ, और फिर उन्होंने फिर राब्ते शुरू किए, और फिर किस तरह से ये कोम्पल फूटी और मदीना की रियासत बनी। और बेशुमार वाक़यात जो है वो हमें मिलते हैं। तो गोया कि अल्लाह ताला ने पूरी हिस्ट्री को इस छोटे से जुमले में या छोटी सी आयत के एक हिस्से में समो दिया कि तुम अल्लाह ताला के उन एहसानात को भी याद करो जो उसने तुमने किए, कि एक कौम ने तो तुम्हारे ऊपर भरपूर हमला करके तुम्हें मतलब नेस्तो नाबूद करने की ठान ही ली थी, कि अल्लाह ताला ने उनके हाथों को तुमसे रोक दिया, जो कि ताकत और तवानाई में भी उस वक़्त तुम्हारे लिए ज़्यादा थे, लिहाजा वही ताकत और तवानाई अब तुम्हारे पास है। तो अब अगर इस ताकत और तवानाई को तुमने पा लिया तो इसी आयत के पिछले हिस्से में देखो कि तुम्हारी दुश्मनी तुम्हें कहीं इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम अपने रब की वादा खिलाफी करते हुए इंसाफ से महरूम हो जाओ। फिर भी तुम्हें इंसाफ ही करना है। वत्तकुल्लाह, देखो तुम अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वह अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह ही
पर चाहिए कि भरोसा करें सब ईमान वाले। लिहाजा अल्लाह ताला को के ऊपर भी सब ईमान वाले को भरोसा करना चाहिए। अपनी तारीख को जब हम सामने रखें तो हमें बेशुमार मिसालें ऐसी मिलती हैं जो हमें इस बात की तरफ हमारी तरगीब देती हैं कि हम आपस में मुत्तहिद होकर जब तक नहीं करेंगे, जब तक मुत्तहिद होकर हम इस कुफर का और इस शैतान के जो वार हैं उनका मुकाबला नहीं करेंगे तो हम कमज़ोर ही रहेंगे। हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें बस बहुत सारे मामलात में इंसाफ के ऊपर खड़े होने की ज़रूरत है। इंसाफ के ऊपर जब खड़े हो जाएंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही फहम के साथ साथ उसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई हमारे सामने हाल रखे। हमारे ज़रूरतमंद के मामलात में कुछ परेशानियाँ, कुछ मसाइल, कुछ मुश्किलात, कुछ दीगर हमारे फैमिलीज़ के, हमारे कारोबार के, हमारे बच्चों के, अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हर तरह में हमारी मदद फरमाए। हमारी नेक और जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमाए। और हमें दुनिया के बेशुमार रिस्क जो अल्लाह ताला ने दे रखे उनके ऊपर अदल व इंसाफ के ऊपर भी अल्लाह ताला हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और फिर उन बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला से तौफीक की दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।